Hello there CLAT aspirants, this is Ritik from AcetheCLAT, and in this video lesson, let us discuss the last 30 days strategy to CLAT 2021. It is not only for people who are just starting right now. The first half or around 5 to 7 minutes of this video lesson would be relevant for anybody or everyone. Okay, let us get started with the first slide. So in this I would talk about what we are going to discuss in this video lesson. Okay, so firstly, the most important skill sets would be discussed. Then secondly, the most critical points would be discussed. Thirdly, at the time that we are living in, and regarding that, what one thing you must take care of in any circumstances, I would discuss that. Subject-wise key points broadly for people who are starting right now, and lastly, how to minimize distractions. So I would say that other than subject-wise key points, wo part of the video hai. By the way, I would leave the timestamps down below. So उसके अलावा ये पूरा video lesson सबके लिए relevant होने वाला है. So please keep watching. Okay, let us start with the first discussion point. Okay, most important skill sets. So broadly, what is at this point in time, what are the two most important skill sets that are required that I have tried and identified कि तुम्हें उस पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तभी तुम्हारी स्कोर्स एग्जामिनेशन में मैक्सिमाइज होंगे. ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी एंड द सेकेंड थिंग इज़ योर टाइम मैनेजमेंट. लेट मी सपोर्ट दिस क्लेम. कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी गाइज, अबाउट दिस आई नीड नॉट टेल यू मच बिकॉज पेपर में जो 3 मेजर सेक्शंस है, योर इंग्लिश, योर क्रिटिकल रीजनिंग एंड योर लीगल रीजनिंग, and how many marks do they constitute together? 40 marks, 38 marks for legal reasoning, around 20 for critical reasoning, that's 58, and around 30 for reading comprehension, right? So around 100 marks are based on your comprehension ability. Okay, we say that GK is important. I'm not saying that GK is not important, but if I had to choose two most important skill sets, first would be comprehension ability and second would be your time management skills. All right, time management ये कैसे important है यार? जो तुम मॉक्स दोगे ना, और आज से तुम जिस तरह अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, that is going to play a huge role in determining your score and eventually your rank and hence the law school that you're going to and spending your next 5 years. All right, so इस समय time management is another skill set that is very important. So if I had to talk about mocks, you should spend around 55-57 minutes in both critical reasoning in both logical reasoning and reading comprehension section, around 7 to 10 minutes in current affairs, around 38 to 40 minutes in legal reasoning, and the last or around 15 to 20 minutes in quantitative techniques. All right, these are the two most important skill sets that are required. Your comprehension ability, how would you improve that? How would you try and improve that? You would go and read tons of editorials every day. By tons, I mean 7 to 10 editorials every day from various newspapers. At this point in time, for increasing your comprehension ability, you might chuck the opinion based articles, the entire जो 800,000 words का articles होते हैं. Instead, you should spend time on reading those 350 to 450 words write up, जो editorials जो newspapers के सबसे left column में होते हैं. Read it from there. Multiple newspapers से read करना है तो सारे newspapers तो तुम्हारे घर पे आएंगे नहीं. Read from online sources. To name 3 to 4 newspapers, I would say The Hindu, Indian Express, The Telegraph, and if you want to go international, The Guardian is a good free website from where you can improve your comprehension ability. So for time management, 2 important tips that I got from my mentors was your Pomodoro technique. Okay, so in which you spend around 45-50 minutes of focused study and then 5 minute का break लेते हो और फिर वो 45 minutes का time repeat करते हो, right? And the second is Parkinson's law. I would not elaborate too much upon this. I would suggest कि go and read from Google yourself. All right. Okay, now let us talk about some of the critical points, most important points या most critical points कह सकते हैं हम इन्हें. So what are they?
what are you preparing for, guys? My answer to this is that you are not. First, let's understand ki what you are not preparing for. You are not preparing for your mocks. Okay. Well, mocks are important. I'm not denying that. But sometimes, especially in the legal reasoning section, the skill sets that are required in your mocks and your sample papers, especially in legal reasoning section, are different. Okay. So what would be my tip in this case? Ki utilize the resources that the consortium has given us. What have they given us till now? 36 passages on legal reasoning and a video lesson as well. Okay. So your first priority after watching this video lesson, or your main takeaway, should be कि you would utilize the resources that the consortium has given to you, be it sample papers or be it your sample questions, be it your video lessons, all right, या फिर न्यूज़ वेबसाइट्स पे सिलेबस पढ़ना जा करके. Okay, that is really important. You are not preparing for your mocks, you are preparing for the final examination. That is CLAT. Okay. Do I have enough time? I was in this phase कि I used to speculate कि क्या होगा क्या नहीं होगा. So my only tip would be कि speculation से कुछ नहीं होता. Okay, and more importantly, you cannot speculate at this point in time because you have a limited amount of time. All right, 10 से 12 घंटे तुम बस efforts डालो, result की चिंता मत करो. That would be my advice on this. Okay, and lastly, what is even more important than CLAT at this point in time? The circumstances that we are living in. We are not living in normal circumstances, and hence मैं कोविड-19 पैंडमिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि CLAT के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वेल ये एडवाइस लेना है कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप नेसेसरी प्रिकॉशंस जो भी कोविड-19 से बचने के लिए है वो ज़रूर लो. योर हेल्थ मस्ट बी योर टॉप प्रायोरिटी. गॉड फॉरबिड, बट अगर आपको कोविड है देन पुट योर हेल्थ ऑन योर टॉप प्रायोरिटी. उसमें ये मत सोचो कि अरे मेरा 2 घंटे की पढ़ाई छूट गई या मैं आज 1 भी घंटे पढ़ नहीं पाया या ऐसा कुछ. ओके, यू कैन अटेम्प्ट CLAT अगेन, बट बाकी सारी चीज़ों के साथ ऐसा नहीं है, राइट? सब कुछ वापस हर बार नहीं मिल सकता है. ओके, सो CLAT अगले साल भी दे सकते हो अगर आपको, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगले साल ही दो, इस साल जितना मेहनत कर सकते हो करो, लेकिन कोविड-19 पैंडमिक है. सो the main takeaway is that take very good care of yourself and your loved ones. That is most important. Okay, ये एक बात कभी मत भूलना प्रिपरेशन करते वक्त. Okay, now let us talk about subject wise key points. First we will talk about English. इसमें क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही मेन अपना सिलेबस है, राइट? सो जो उनकी जो एक सॉर्ट ऑफ हायरार्की होती है, दैट इज CLAT. Then we move to higher, more difficult level is LSAT India, then it is LSAT US, और उसके बाद GMAT और CAT को सिमिलर मानते हैं. अब CAT I believe has a slight edge over GMAT, but ये इंटरप्रिटेशन ये डिबेटेबल है. ओके, तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, उससे पहले ये ध्यान रखना कि आप मॉक्स के अलावा जो एक अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो तो सैम्पल पेपर्स को प्रायोरिटी देना. उसके बाद LSAT इंडिया. वंस यू गेट कंफर्टेबल विद LSAT इंडिया, उसके बाद ही LSAT US, फिर GMAT या फिर CAT. ओके, डायरेक्ट GMAT पे मत जाना, स्पेशली दोज हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ और जिनकी इंग्लिश पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है. ओके, द सेकेंड पॉइंट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर वोकेबलरी. सो वोकेबलरी आई वुड नॉट से कि आपने 1 महीने में बहुत कुछ कर जाना है. ओके, लेकिन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आप जहाँ पे इस स्टेज पे हो वहाँ से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. सो अ वेरी गुड ओल्ड टेक्निक इज़ दैट व्हाइल यू आर रीडिंग एन एडिटोरियल, राइट, नोटिस एनी वर्ड की. अगर जैसे ही आपने नोटिस करा कि मुझे इस वर्ड में प्रॉब्लम है, यू कंप्लीट रीडिंग दैट एडिटोरियल और एनी आर्टिकल एंड देन यू गो बैक टू दैट वर्ड, ट्राई एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, एंड उसको आप गूगल से सर्च कर लो चेक करने के लिए, या फिर आपको पता नहीं था तो फिर उसे पता करने के लिए. ओके, सैम्पल पेपर्स एज सेड उसको भूलना मत. ओके, एटलीस्ट मतलब इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सैम्पल पेपर्स 2 बार सॉल्व करो, लेकिन एक बार एग्ज़ाम के पहले तो ज़रूर भूलना मत गलती से भी. ओके, स्पेंड टाइम ऑन दैट. सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने का तरीका ये है, आई वुड से कि डू इट सेक्शनल वाइज.
उतना क्योंकि अब जीके रेलेवेंट नहीं है ना, राइट, पिछले साल का, तो सेक्शनल वाइज करना दैट वुड मेक मोर सेंस. एंड टाइम योर सेल्फ वाइल यू आर अटेम्प्टिंग दैट सेक्शनल टेस्ट. बट एनालिसिस के समय आराम से आधा 1 घंटे पर सेक्शन एनालिसिस कर सकते हो. ओके. प्लेलिस्ट, सो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपको बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आइडिया नहीं है, या फिर अगर आइडिया है भी तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, राइट, 30 में 15-20 सॉर्ट ऑफ स्कोर आ रहा है, उससे भी कम आ रहा है. सो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ना, दैट माइट हेल्प अ लॉट. मैं लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हो इस वीडियो लेसन के बाद. ओके. करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स में यार मैं अपने काम कर रहा हूँ. 75 इवेंट्स में अराउंड 45-50 इवेंट्स कवर हो चुके हैं राइट नाउ. ओके. एंड what I would say is 75 to 150 इवेंट्स मोर आपको अपने तरफ से करने हैं. एज यू ऑल नो कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं 75 इवेंट्स दोज आर गोइंग टू बी ऑल इंक्लूसिव. आपको अपने तरफ से 75 to 150 इवेंट्स एक्स्ट्रा करके जाने चाहिए. ओके. किस तरह से मैं किस तरह से करना है, आई बिलीव यू ऑलरेडी नो. जो मैं सोर्सेज, द हिंदू, दृष्टि, IAS, इंडियन एक्सप्रेस, एक यूट्यूब वीडियो देख लिया, सॉर्ट ऑफ इस तरह से कवर कर सकते हो आप. ओके. हाँ, क्लियर द बैकलॉग एज सून एज पॉसिबल. अगर आपने ये 75 इवेंट्स जो मैं दे रहा हूँ उससे आप तक अभी तक कवर नहीं किया है पूरा, मतलब 45-50 इवेंट्स में एक भी बैकलॉग है ना, तो जल्दी से जल्दी उस बैकलॉग को कवर करो. मान लो आपने अभी ये पहली बार एज द क्लैट के चैनल पे आए हो. ओके. देन गो टू द टेलीग्राम चैनल, स्पेंड सम टाइम ऑन दैट. एंड 45-50 इवेंट्स अभी तक हो चुके हैं. यू कैन डेफिनेटली कवर देम अप इन द नेक्स्ट 10 to 12 days. Okay, please keep that in mind. All right. Revision is still the most important thing. ठीक है, आज पढ़ लिया, सीधा एग्ज़ाम लिखने गए, बहुत गलती होगी. ओके. उसको मतलब इवेंट्स को ना जितनी ज़्यादा बार हो सके वीक में 5 से 10-12 घंटे निकालो रिवाइज करने के लिए, सिर्फ आपके जो भी पुराने इवेंट्स आपने कवर किए हैं. ओके. दैट वुड बी माई की पॉइंट्स ऑन करंट अफेयर्स. लेट्स नॉट टॉक अबाउट लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग में यार मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है आपके लिए. गो थ्रू द लीगल रीजनिंग प्लेलिस्ट फर्स्ट, देन जो 36 पैसेजेस है सैम्पल पेपर्स के, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट. आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. एंड लास्टली आपके गो थ्रू देम ट्वाइस इफ नॉट थ्राइस. दैट मतलब थ्राइस रिकमेंडेड है, लेकिन ट्वाइस. बाकी सैम्पल पेपर्स को आप बाकी सेक्शंस को आप 1 बार या 2 बार करोगे तो चलेगा, लेकिन इसे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप 3 बार करो. लीगल रीजनिंग सेक्शन. ओके. एंड डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग थ्योरी. इंस्टेड रीड अबाउट कंटेम्प्रेरी लीगल इवेंट्स. जो कंटेम्प्रेरी लीगल क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे थोड़े आर्टिकल्स पढ़ो, इंस्टेड ऑफ रीडिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ, IPC, ये सब. ये दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प टू मच. इवन प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा हिमसेल्फ हैज़ कम आउट एंड सेड दिस. ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ. ओके. एक बात भूल रहा हूँ मैं, हाँ, इनके अलावा यार आपके सिर्फ मॉक्स बचते हैं. उनको आप ठीक से स्पेंड 38-40 मिनट्स इन द पेपर एंड देन एनालिसिस करते रहो. यू वुड बी एबल टू इम्प्रूव दिस सेक्शन. द पेनल्टीमेट सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, खान अकेडमी से आपने बेसिक्स क्लियर करने हैं. ऑल राइट. 7 सेक्शनल टेस्ट मैंने अभी तक डाले हैं, शायद 8 भी आ चुका होगा जब आप वीडियो लेसन देख रहे हो. 2 और 10 मेरा डालने का टारगेट है. एंड चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हो. दे आर वेरी रेलेवेंट टू योर प्रिपरेशन एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प अ लॉट. बेस्ड कम्प्लीटली ऑन द न्यू पैटर्न क्लैट एंड 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस. सारे तरह के क्वेश्चंस कवर हैं. ओके. सैम्पल पेपर्स अगेन, मॉक्स एंड देन LSAT GMAT. ये आपकी स्ट्रैटेजी या फिर ये आपकी सॉर्ट ऑफ हायरार्की होनी चाहिए. पहले सैम्पल पेपर्स को मास्टर करा, फिर मॉक्स, और मॉक्स के साथ साथ LSAT GMAT भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो LSAT में या GMAT में, उनके क्वेश्चंस करते रहो. ओके. एंड AR एनालिटिकल रीजनिंग में जो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट है, ये हमने पहले से बात करी क्रिटिकल रीजनिंग की, राइट. एनालिटिकल रीजनिंग में नीड बेस्ड अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, विच मीन्स कि आज मुझे डेटा अरेंजमेंट में पजल्स में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने 20-25 पजल सेट्स कर दिए उस पर कंफर्टेबल होने के लिए. ओके. and a very important thing, I would talk about this later. Other than that, blood relations, sequence series,
जिस तरह के भी जो भी एनालिटिकल रीजनिंग के चैप्टर्स हैं 5-7 हैं, उन पे आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो मॉक्स से ही पता चलेगी, राइट। सो जाके आपने तुरंत कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं एंड क्वेश्चंस लगा लेने हैं, दैट वुड हेल्प अ लॉट। ओके, सब्जेक्ट वाइज की पॉइंट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें तो नाउ और नेवर यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस। सो not just the ones who are starting right now, but a lot of people who are already preparing for CLAT are sort of chucking this question again and again. Okay, कि ये avoid कर रहे हैं, but you must understand कि किसी भी competitive examination को अच्छे से clear करने के लिए you have to go through the process. Okay, quantitative techniques एक लॉ स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है या नहीं ये कंसोर्टियम को डिसाइड करने दो, लेकिन कंसोर्टियम ने अगर आपको ये सेक्शन दिया है, राइट, सो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट, देयर इज़ नो ऑप्शन। ओके, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर्स मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट। जो भी चैप्टर्स मेंशन्ड है वेबसाइट पे, आई वुड लिंक द क्लैट ऑफिशियल वेबसाइट ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड वहाँ पे जाके आप सिलेबस या यूजी गाइड करके एक पेज है, वहाँ पे जाके यू कैन स्टडी द सिलेबस और जो भी चैप्टर्स मेंशन हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। मॉक्स में जिस चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद वापस नीड बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ओके, और ये बात जो मैंने कही यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस, ये एनालिटिकल रीजनिंग वालों के लिए भी है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए भी है, क्योंकि व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स इज कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स चेक करता है वो एनालिटिकल रीजनिंग भी चेक कर रहा होता है। ओके, सो keep that in mind, I would say. Now, how to reduce distraction. Note that मैंने यहाँ पे how to remove distraction नहीं लिखा है क्योंकि that is probably not possible. Okay, reduce distractions में यार कुछ बातें हैं. Okay, stay away from social media. What I mean by that is stop watching YouTube shorts, Instagram reels, other TikTok based platforms जो MX टकाटक एंड ऑल बहुत सारे हैं जो शॉर्ट स्पैन 15-20-1 मिनट तक के एक जो वीडियो आपको देते हैं। दैट मेनी एक्सपर्ट्स ऑल्सो क्लेम कि ये आपकी अटेंशन स्पैन कम करता है। ओके, सो माई एडवाइस वुड बी कि स्टे अवे फ्रॉम देम एटलीस्ट जब तक क्लैट नहीं हो जाता। ओके, एंड या पोमोडोरो टेक्निक आपने इस्तेमाल करा, पार्किंसंस लॉ के बारे में जाके पढ़ो थोड़ा सा, एंड पोमोडोरो टेक्निक आपने इस्तेमाल करा, यू वुड डेफिनेटली जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, जो टाइम मैनेजमेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड है, दैट वुड डेफिनेटली इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ये पोमोडोरो टेक्निक से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो टेलीग्राम डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप आपके डिस्कशंस होते हैं, अवॉइड देम। बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही उन पे इंगेज करो, नहीं तो that is not helping you. I would definitely say this. Okay, that was my tip. And lastly, if you want one-on-one mentoring session from me, you can definitely enroll into my one-on-one mentoring session from the first link in the description box. The idea of this is कि आप सबकी बातें नहीं सुनो, एक की बातें सुनो एंड उस पर अपनी strategy build up करो, and definitely I would be glad to help you out. Yeah, right. So should you require any personal guidance, first link in the description box, you may book your session from there. All right. So yeah, this is it from me. This is Ritik Sinha signing off. Till then, you take very good care of yourself and your loved ones as well. And yeah, bye and all the best.